Good morning, students. Today we are going to start our next chapter. Next chapter of macroeconomics, chapter number 7. Chapter 7, aggregate demands, aggregate demand and related concepts. And related concepts. So student, in this chapter, we will study about meaning and components of aggregate demand, aggregate supply, consumption function, or you can say propensity to consume, type of propensity to consume, saving function, or you can say propensity to save, types of propensity to save, investment function, determinants of investment, ex ante and ex post saving and investment, full employment and involuntary unemployment. Okay. And last, solve practicals. So today we will discuss, first of all, we will discuss meaning and components of aggregate demand. Meaning and components of aggregate demand. So student, this is a very important topic. ठीक है, aggregate demand, meaning and components of aggregate demand. बहुत बार एग्जाम में आता है, कंपोनेंट्स पूछता है वो एग्रीगेट डिमांड के, से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. So aggregate demand, what is aggregate demand? Aggregate demand, aggregate demand AD. Okay, aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income, during a period of one accounting year. So student, yes, what is aggregate demand? Aggregate demand refers to total value of final goods and services. ठीक है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी टोटल वैल्यू विच ऑल दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जितने भी सभी सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आर प्लानिंग टू बाय, प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर. सो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि यहाँ पर जो हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड नहीं है. दिस इज द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड. ओके, यहाँ पर प्लानिंग है, ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड नहीं है, प्लान्ड होती है ये. ठीक है सारी. सो एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy. ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, तो ये वर्ड आपको लिखना जरूरी है, प्लानिंग टू बाय. ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं होती, प्लान्ड होती है. और ऑल दी सेक्टर्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑल दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी.
ठीक है, सभी जो इकोनॉमी में सभी सेक्टर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर. So in other words, students, you can say कि aggregate demand is the aggregate expenditure. Okay, आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास aggregate demand है वो आपका एक तरीके से क्या है, aggregate expenditure ही है, aggregate expenditure. Okay, aggregate demand is the aggregate expenditure that different sector of economy are willing to incur during a given period. Okay, so it means aggregate demand and aggregate expenditure mean the same. कि दोनों का मतलब एक ही है, या आप aggregate demand को बोलो या aggregate expenditure को, so एक ही बात है. So it is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure and note the actual expenditure. Okay, aggregate demand कभी भी हम जो लेते हैं यहाँ पर actual expenditure नहीं होते, ये planned expenditure होते हैं. So aggregate demand is the total expenditure that all the household, firms, government and rest of the world are planning to incur during a given period of time. So aggregate demand जो है आपकी aggregate demand is a flow concept. ये आपका एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टो कंसेप्ट नहीं है. ओके, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट एज इट इज जनरली मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, एक पीरियड के अंदर हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होता, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. सो इस मेजर होता है. सो ये आपके पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. Okay, now the next is student, please don't confuse aggregate demand एंड मार्केट डिमांड. दोनों के बीच में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड आप ये सोचो कि सेम है. एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी, वेयर एज मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी इन द मार्केट. मार्केट में एक कॉमोडिटी के लिए जो टोटल डिमांड है, दैट इज मार्केट डिमांड. Okay, now the next is components of aggregate demand. It is a very important topic. Components of aggregate demand. Components of aggregate demand. So यहाँ पर आपके पास क्या है, the various components of aggregate demand are, first is प्राइवेट और हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो फर्स्ट आपके पास कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, वो क्या है, प्राइवेट या हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, एंड आप इसको कैपिटल सी से डिनोट करोगे. तो प्राइवेट और हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by household on purchase of goods and services during an accounting year. कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर, हाउस होल्ड जो है ना, जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर जितना टोटल एक्सपेंडिचर करता है, वो उसकी क्या होती है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. Okay, so generally consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income. ठीक है, ये ज्यादातर किससे इन्फ्लुएंस होती है, डिस्पोजेबल इनकम से. ठीक है, अगर डिस्पोजेबल इनकम, हायर द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. Okay, lower the consumption disposable income, lower is the consumption expenditure. So student ये ध्यान में रखना, जितनी disposable income ज्यादा होगी उतनी ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगी, जितना आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम है उतना ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कम होगा. सो डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम. अब यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम की बात आती है कि व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम. सो डिस्पोजेबल इनकम refers to the
income from all sources, which is available to households for spending on consumption and saving. ओके कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने सभी सोर्सेज से जो इनकम है विच इज अवेलेबल टू हाउसहोल्ड, जो हाउसहोल्ड को मिल रही है किस चीज के लिए? फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन एंड सेविंग, कि वो अपनी इस जो भी इनकम उसको मिल रही है सभी सोर्सेज से, उस इनकम को वो कंजप्शन और सेविंग पर के लिए वो स्पेंड कर सकता है। तो ये आपकी क्या है? ये होती है डिस्पोजेबल इनकम। ओके, so it must be kept in mind that the consumption expenditure we are discussing is ex ante, that is planned consumption expenditure। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये जो हमने की है ये आपकी क्या है? ये आपकी एक्स एंटी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। इट मींस प्लान्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लान्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल आई। ठीक है, वी डिनोट इट बाय द कैपिटल आई। Yes, for second is investment expenditure I. So it refers to the total expenditure incurred by all private firms on capital goods। ओके, ये वो एक्सपेंडिचर है सारे आएंगे जो कि सभी प्राइवेट फर्म के द्वारा कैपिटल गुड्स के ऊपर स्पेंड किए जाते हैं। ओके, सो इसमें वो सभी आएंगे। सो इट इंक्लूड addition to the stock of physical capital assets such as machinery, equipments, buildings, etc., and change in inventory. Okay, so for simplicity, it is assumed in our study that investment expenditure is autonomous expenditure। हम अपनी स्टडी को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ये हमारी क्या है? ऑटोनोमस। अभी आपको आगे कंसेप्ट भी आएगा इंड्यूस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी जो फिक्स होगी, यानी अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो वो हर एक इनकम हर एक लेवल पर वो 10 करोड़ ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को अभी हम आगे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये अपनी स्टडी को की सिंपलिसिटी के लिए क्या किया गया है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, जो कि इनकम के लेवल के से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ठीक है, ये वाली इन्वेस्टमेंट। नाउ द थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। It is denoted by the capital G. So it refers to the total expenditure incurred by government on consumer goods
and capital goods to satisfy the common needs of the economy. ओके क्योंकि गवर्नमेंट की है, सो एक इकोनॉमी की कॉमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो हम क्या करते हैं, ठीक है, जो फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, ये टोटल इसको ये वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में सेटिस्फाई करने के लिए कॉमन नीड्स को एक इकोनॉमी की, ठीक है, तो ये सभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं, तो ये इंक्लूड करेंगे। सो स्टूडेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्चुअली इट मींस कि गवर्नमेंट इनकर कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट दोनों तरह की एक्सपेंडिचर करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज incurred to meet public needs like law and orders, education, health, transport, defense. Okay, like investment expenditure involves construction of railways, road, highways, power plants, etc. Okay, so level of government expenditure is determined by the policy of government, which is generally guided by social welfare. Clear? Now the next component is fourth component. Fourth component is net exports. Net exports means export minus imports. Our last component, this is the last component of aggregate demand. Fourth component, net exports, export minus imports. So exports indicate demand for goods produced within the domestic territory of a country by the rest of the world. You know that कि export indicate क्या दिखा रहा है, ये demand for the goods produced within a domestic territory, जो हमारी ही domestic territory में produce हुई है, और demand कौन कर रहा है, by the rest of the world, और उस goods की demand कौन कर रहा है, rest of the world. Okay, so ये हो गए exports. And import refers to the demand of a resident of a country for the goods. अब यहाँ पर import में क्या होता है, जो हमारे resident हैं, हमारी कंट्री के रेजिडेंट है, वो डिमांड करते हैं किस चीज की, फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस अब्रोड, जो अब्रोड में प्रोड्यूस हुई है। एंड द नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स हो गए आपके पास स्टूडेंट, एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट जनरली डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ड्यूटीज एंड ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, इन सभी के ऊपर जो नेट एक्सपोर्ट का मैग्नीट्यूड है जनरली इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ कंपोनेंट्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आपको 4 बताए हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर C, सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I, थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G, and net export minus import X minus M. So student, aggregate demand is equal to C plus I plus G plus export minus import, यानी net export. Okay, so this is the aggregate demand and aggregate demand के components and determinants. Okay, now the next is aggregate demand in a two-sector. Aggregate demand in a two-sector model. In a two-sector model. Okay, two-sector model, it means first is household sector and second producer sector. So AD is equal to C plus I.
Okay, so students, since the determination of income and employment is to be studied in the context of two sector model, आपके जो स्टडी है ना प्लस टू लेवल पर, उसमें हम जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हमने डिटरमिन करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है? टू सेक्टर मॉडल के अंदर, जिसमें हम सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म को लेंगे, यानी द थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर नॉट डिस्कस इन डिटेल। ओके, इन दोनों को, जो गवर्नमेंट आपके जो थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट, इनको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने आपके सिलेबस में नहीं लिया है। सो इवन दो एडी हैज फोर कंपोनेंट, वी विल एज्यूम दैट देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो अभी हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड के फोर कंपोनेंट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट। बट वी विल एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर, वी विल एज्यूम दैट देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी, there is closed economy, and aggregate demand is a function, is a function of only consumption expenditure, consumption expenditure and investment expenditure, and investment expenditure, that is AD is equal to C plus I। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी थी, कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी जिसके अंदर जितने, मतलब जो हमारी इकोनॉमी के अंदर ही जितनी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि कोई भी हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई इकोनॉमिक रिलेशन ना हो, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। और जिस इकोनॉमी में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी क्या होगी? ओपन इकोनॉमी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी तो आपकी क्या है? सी प्लस आई प्लस जी। इसमें अगर हम एक्सपोर्ट प्लस माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट और ऐड करते हैं, तो ये सारी टोटल मिलके बन जाती है हमारी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, तो अभी हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे, और क्लोज्ड इकोनॉमी में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ हम टू सेक्टर मॉडल, यानी कि सिर्फ टू सेक्टर्स लेंगे। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। गवर्नमेंट को भी हम इस अपनी स्टडी में प्लस टू लेवल पर नहीं लेते हैं। ओके, तो हम सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ ही आगे अपनी स्टडी करने वाले हैं। Okay, so now the next is diagrammatic representation of aggregate demand. Diagrammatic representation of aggregate demand. अब एग्रीगेट डिमांड के हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स? डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है ना, वो इकोनॉमी में जो इनकम का लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, यस, बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यहाँ पर आप जनरली देखोगे इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, या फिर यू कैन से टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। As the level of income rises, AD also rises. Okay, and the level of income falls, aggregate demand also falls. Okay, so there is a positive relation between level of income and aggregate demand. Okay, now let us understand with the help of schedule and diagram. So table number 1. Table 1, that is aggregate demand schedule. Aggregate
डिमांड शेड्यूल। ओके, और ये इसका हेड नोट बनाएंगे क्या, अमाउंट इन रुपीज करोड़। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट इनकम, इनकम वाई, कंजप्शन, कंजप्शन सी, इन्वेस्टमेंट आई, एंड एग्रीगेट डिमांड एडी सी प्लस आई। ओके, सो देखिए अब यहाँ पर इनकम, अगर हमारी इनकम है 0, ठीक है, सो 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होती। हम मान के चलते हैं ये 40 है। क्यों नहीं 0 होती कंजप्शन स्टूडेंट, क्योंकि देखिए कोई हमेशा हर एक इंसान की एक जो मिनिमम नीड होती है रोटी कपड़े की, वो हमेशा रहती है। और वो 2 वक्त का जीने के लिए उसको 2 वक्त की जो रोटी चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, अगर उसकी इनकम 0 भी है, मान लो इनकम 0 भी है, तब भी वो कंजप्शन तो कुछ ना कुछ करेगा ना। जो उसका मिनिमम कंजप्शन है वो तो वो करेगा ही करेगा, चाहे वो कहीं से भी करे। चाहे वो उसको अपनी जो पुरानी सेविंग है वो उठानी पड़े, वो या फिर उसको बोरोइंग लेनी पड़े किसी से, तो वो कहीं ना कहीं से कंजप्शन करता ही है। सो इनकम के 0 लेवल पर भी कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होती, वो उसका एक मिनिमम लेवल हमेशा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं दिस इज द 40। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया था, हम यहाँ पर लेंगे इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो इसको फिक्स लेंगे, मान लो हम फिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम जितने भी करेंगे हम सबके लिए 2020 की आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं। ओके, सो अब इनकम आपकी 100 से इंक्रीज हुई। अब कंजप्शन क्या करेंगे, देखो इनकम जितने से इंक्रीज होती है कंजप्शन उस लेवल से इंक्रीज नहीं होती। तो हम मान लो यहाँ पर अब 80 से इंक्रीज कर लेते हैं। अगर इनकम हमारी 100 से बढ़ रही है तो हम कंजप्शन को 80 से इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ हम अगर 80 से इंक्रीज करेंगे सो 120। So now the income is 200. So this one is 200. Income is 300. So consumption is 280. Income is 400. Then consumption is 360. Income is 500. Then consumption is 440. Okay. And income is 600. Then consumption is 520. कि हमने इनकम अपनी इंक्रीज करी 100 से और कंजप्शन कर दी इंक्रीज 80 से, क्योंकि जिस लेवल से हमारी इनकम इंक्रीज होती है उतनी स्पीड से कभी कंजप्शन इंक्रीज नहीं होती। क्योंकि हमारा एक, हर एक इंसान का एक नेचर होता है कि वो अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ फिर धीरे धीरे सेविंग करनी भी स्टार्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एग्रीगेट डिमांड वो हम आगे करेंगे ये कंसेप्ट सेविंग वाला। सो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड हमने कैलकुलेट करनी है। हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड, consumption expenditure plus investment expenditure. So C plus I. So 40 plus 20, this is 60. 120 plus 20, 140. 200 plus 20, 20, 220. Then 280 plus 20, 300. 360 plus 20, 380. Okay, 440 plus 20, 460. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and 520 plus 20, this is 540. क्लियर, सो ये आपके पास हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो स्टूडेंट ये जो टेबल है इस टेबल से आपको क्या शो हो रहा है, अगर मान लो मैं इसका डायग्राम बनाए हम, तो नाउ वी शो द income on OX axis, shows the income by in rupees crore on OX axis, and aggregate demand और एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक्सपेंडिचर इन रुपीज करोड़ shows on OY axis. ओके, अब इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो फिक्स है 2020 पर फिक्स है। सो ये क्या होगी, ये पैरेलल टू OX एक्सिस के बनेगी, आई आई, ठीक है, पैरेलल टू OX एक्सिस। ठीक है, हम अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं इसको आर। अब क्या करते हैं कंजप्शन, अब कंजप्शन जब इनकम का लेवल 0 है तो ये 40 से है,
यानी टेबल से ही हमें पता चल रहा है कि इनकम के जीरो लेवल पर हमारा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन बना रहता है, जिसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी बोल सकते हैं। सो ये हमारे जो ये कंजप्शन ऑटोनोमस है हमारे, इट मीन्स कि जो कंजप्शन कर्व है वो कभी भी हमारा किससे नहीं निकलेगा, ओरिजिन पॉइंट जीरो से नहीं निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा, ये ओ वाई एक्सिस से निकले से कहीं से ये ओरिजिनेट होता है कंजप्शन कर्व। ओके, और हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारे कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। यानी क्या व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कंजप्शन का, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, स्लोप हमारा कैसा हो जाएगा कंजप्शन का, अपवर्ड स्लोप, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। सो मान लो ये 40 पे, यहाँ 40 है हमारे पास, सो 40 से ये कंजप्शन कर्व हमारा इस तरीके से सी पर बनेगा। ओके, अब एडी कर्व कैसे बनेगा, सी प्लस आई, सो दिस इज सी और ये आई, दिस इज आई। सो हमने ये सी में टोटल आई को 20 को ऐड किया है, तो जितना ये हमारा गैप है 20 का, इतना गैप आप यहाँ पर लो ना, ये 20 का गैप लो और पैरेलल टू सी के आपने क्या निकालना है, एडी। तो दिस इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ओके, टी, और यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं ये एस। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। फर्स्ट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हम बनाया हमने वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। So as stated before, AD is assumed to be a function of only consumption demand and investment demand. Second point is positive consumption even when income level is zero. हमने देखा कि जब इनकम का लेवल जीरो है उस पर भी हमारी कंजप्शन पॉजिटिव रहती है। सो देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। जब इनकम का लेवल जीरो है तब भी हमारा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन बनी रहती है। इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्व्स इवन इफ इनकम इज जीरो, क्योंकि वो हमेशा इंसान जो होती है अपनी कुछ बेसिक नीड्स को फुलफिल हमेशा करता ही है, चाहे उसकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। ओके, जैसा कि टेबल में आप देख रहे हो कंजप्शन, कंजप्शन जो है यहाँ पर ₹40 करोड़, ठीक है, ₹40 करोड़ when y is equal to 0 is termed as autonomous consumption। ओके, सो ये आपकी जो 40 है ये वाली कंजप्शन आपकी सी बार से डिनोट कर सकते हो आप इसको, क्योंकि ये आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन है, सी बार। ओके, एंड इन फिगर, इन दिस फिगर कंजप्शन कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस, एस से स्टार्ट हो रहा है कंजप्शन कर्व, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस एंड नॉट फ्रॉम ओरिजिन। So the positive consumption at zero level of income, that is OS. This is O, yes, OS. ठीक है, this is OS. Is indicate the level of autonomous consumption C bar. तो ये जो OS है ना, ये वाला सारा पोर्शन OS, ये आपका क्या है, C bar. Okay, so autonomous consumption denoted by C bar refers the minimum level of consumption which is needed for survival. जो हमें survive करने के लिए जरूरत होती है इस level की, that is consumption at zero level of national income. So such consumption is made either from past saving, either for past saving or through sale of assets or borrowing. Okay, and the third point is, so second point हमने बताया positive consumption even when income level is zero, and the third point is slope of consumption curve. Slope of consumption curve, कैसा consumption curve का slope है, the first component 80, that is consumption curve slope upward because consumption increases with increase in income. So however proportionate increase in consumption is less than that of income. हालांकि हमने यहाँ पे proportion देखे तो दोनों में consumption का proportion income के comparatively less है। जिस स्पीड से इनकम इंक्रीज होती है उतनी स्पीड से हमारी कंजप्शन इंक्रीज नहीं होती, फिर भी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है। सो इट हैपेंस बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है कि जब इंसान की अपनी जो बेसिक नीड्स होती है वो फिलफिल हो जाती है, उसके बाद वो अपनी इनकम में से सेविंग करनी स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्लोप ऑफ autonomous investment curve। autonomous investment curve I का स्लोप कैसा होगा, the second component investment expenditure I, it is a straight line parallel to x axis। आप ये देख रहे हो हमने x axis के पैरेलल बनाया है ये x axis as it is assumed to be independent of the level of income।
क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इनकम के लेवल से ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट ₹20 करोड़ एंड इन फिगर एंड इन दिस फिगर OR, this is OR ना, OR indicate the level of autonomous investment. Okay, and the fifth point is starting point of AD curve of C plus I curve. जो AD कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट C कर्व कहाँ से स्टार्ट है? ये T पॉइंट से, देखिए ये T पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। AD कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट T at as at zero level of national income. So AD is equal to, AD आपका यहाँ पर क्या है? AD आपके पास यहाँ पर है autonomous consumption, OS, OS प्लस autonomous investment OR। ठीक है, ये है OS plus OR। ठीक है, एड AD is equal to 60 rupees, 60 crore at zero level of income। एंड लास्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ AD कर्व। AD कर्व जो ये बनाया है इसका स्लोप कैसा होगा? AD कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप which indicate that as income increases, AD or aggregate expenditure also increases. Clear, students? So that's all for today. Have a good day.